Thank you, everyone. On the behalf of Financial and Tax Literacy Directorate, we welcome you for the webinar. Today's speaker is Vikasa, committee member, and he is our speaker of the day. For the session, your mutual funds questions answered. CA Nikhil Pagaria is a seasoned chartered accountant and is a well qualified person to speak on the topic for the general public. I would request Vishnu sir to please give the welcome address so that we can start the webinar. Thank you, madam. Respected today's speaker and my very good friend Nikhil Jain from Mumbai is also managing committee member of Navi Mumbai branch. Our office, Jyoti Singh ji. Friends, I welcome all of you in today's first webinar of this committee, the of Financial and Tax Literacy Directorate. Friends, under this committee, we are doing the program across the country who is non-chartered accountant and to giving the idea of the finance and the tax. So today we have thought that why should not we do the program on mutual fund question and answers, because so many people are not aware about the mutual funds and how to invest in the mutual funds, and how people sometimes thought that in the investment in the mutual funds whether मेरे साथ में कोई fraud तो नहीं हो जाएगा. Some type of the thoughts comes in the mind. So our today's speaker Nikhil Jain will take care how the investment in the mutual fund, SIP, and other instrument of the other government instrument also to invest for the benefit of the people at large. So I will not take much of the time, and I request Jyoti Singh ji to brief introduce our Nikhil Jain, our speaker, and then Nikhil Jain will be present the today's session. CA Nikhil Pagaria is a committee member of Vikasa New Mumbai branch, and he is a well qualified person for the today's session. Mutual fund answered. Sir, we are having audiences that are non-CAs, as sir told. So we want you to simplify the jargons, the technical terms for them, so that they can understand how they should deal with the mutual funds, SIPs, and other investment options. So, sir, I welcome you again, and I would request you to please start the session. Thank you, ma'am. Thank you, Jyoti ma'am, and thank you, Vishnu sir, for giving me such a wonderful opportunity to investment awareness program about mutual fund. So I start the today program. So I'm sharing my PPT. It's visible? Yes. So today topic is investor awareness program for mutual fund. Basically, I'm starting basic about mutual fund. What is mutual fund? How can we invest? What is the type of mutual funds? And about taxation, what taxation on mutual fund? So let's start for basic of mutual fund. Just a minute. Mutual fund is a pooled investment vehicle that collects money from a multiple investor and invest that combined capital in a diversified portfolio of assets such as a stock, bonds, and other security based on the specified investment objective. What mutual fund industries do means they collect for amount from various investors, like if somebody wants to 10,000, 20,000, 1 lakh, and somebody wants to invest in liquid fund 1 lakh, 2 lakhs, yeah, 50 lakhs. So they collect money from many investors, and that invest in equity market and the combined capital in diversified portfolio of assets. Means such a वो stock में, bonds में, other securities, government securities है, या
कुछ भी कॉर्पोरेट बॉन्ड से वो इन्वेस्ट करते हैं उसमें. Then how does mutual fund is work? The investor pull their money to the fund manager, and fund manager invest in stock and securities. Then the fund manager generate returns to an investor. This is the basic criteria of mutual fund industries is working. Why invest in mutual fund? The basic funda ki why we invest in mutual fund because the mutual fund is professionally managed by a fund manager having a experience about a multiple of year, and educated in IIM Ahmedabad, and I very qualified. The fund managers are very qualified. That's the reason they professionally managed by the mutual fund industries. And transparency, the mutual fund में transparency एकदम very clear transparency है कि आप चाहो तो NAV per day आप NAV check कर सकते हो कि what mutual fund industry is generating the return to investor. Then liquidity is a must criteria of mutual fund because we know कि अगर हमने suppose investment किया है, suppose कोई property ली है, तो हम उसको जल्दी लिक्विडेट नहीं कर सकते हैं. या किसी और फंड में या किसी में एफडी में किया है, एफडी में सपोज 1 to 2 years का किया तो प्री मैच्योर्ड भी करते हैं, तो उसमें आपको मालूम है कि कुछ डिडक्शन होके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमको मिलता है. तो लिक्विडिटी, इसमें लिक्विडिटी ऐसा है कि अगर आपने आज ही रिडीम किया तो वो कल या इवन डे आफ्टर टुमारो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा. और सबसे बेस्ट चीज इसमें यही है कि दिस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज वेल रेगुलेटेड बाय सेबी. तो सेबी में इसमें कुछ फ्रॉड्स है या कुछ है तो आप सेबी में इसका कंप्लेन कर सकते हो अगेंस्ट एएमसी जो आपका एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है, उसके अगेंस्ट भी आप फ्रॉड कर कंप्लेन कर सकते हो कि ये आपको बराबर से डेटा नहीं आ रहा है, कुछ फ्रॉड हुआ है, या किसी के अगेंस्ट कर सकते हो. तो द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज वेल रेगुलेटेड बाय द सेबी. And fourth is most important thing is convenient. Convenient means invest small amount. If you want to invest if 100 rupees, you can invest 100 rupees. If you want to invest 1000 rupees, you can invest. Means no criteria about कि आपको 1 lakh या 1 crore या 50 lakhs invest करना पड़ेगा इसमें. तो you invest in very small amount of 100 rupees. Then next benefit is a low cost. It's very low cost. हार्डली अगर आप देखोगे तो इसका एक्सपेंसेस रेशियो 2.5% रहता है. तो इट्स वेरी लो कॉस्ट अवेलेबल है. ऐसा कोई अदर चार्जेस नहीं है कि लाइक फंड मैनेजर के जो चार्जेस जो एक्सपेंसेस रेशियो होते हैं वही आपको पे करना है, वो भी आपके एनएवी में एडजस्ट हो जाता है. देन रिस्क डाइवर्सिफिकेशन. The mutual fund industry is well diversified to mitigate your risk. Even you want to invest in equity market, which is more risky, then you can invest. You want to invest in debt fund, it's a moderate risk, its risk is moderate, then you want to invest. If you want to low risk, then you can invest in debt fund. So that is the 5, 6, 7 benefit in why we invest in mutual fund. Generally, actually what we do with our money means we save, we spend, or we invest. Mostly agar if we got credited the salary on 5th, 6th, then or more mainly our money goes to pay the EMI, then to pay the credit card bills, then and the balance amount we think we want to invest. But this is the wrong theory. We thinking ki we want to invest after expenditure of after all expenses, like after paying EMI and after paying credit card bills, then after paying other expenses, whatever you expenses. So what Warren Buffett saying, do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. Means हम क्या सोचते हैं कि चलो एक बार हमने पहले फर्स्टली ये पेमेंट कर दिया, अपना EMI हो गया, क्रेडिट कार्ड बिल हो गया, दूसरे एक्सपेंसेस हो गया, तो देन वी थिंक चलो सैलरी में से कुछ 5% या 6% बच गया, अब हम इन्वेस्ट कर देते हैं. बट कुछ ना कुछ वी आर थिंकिंग रॉन्ग वे कि जो बचा उसको हम इन्वेस्ट कर दो.
तो पहले आप आपका प्लान और एजेंडा सेट करो कि आपको क्या इन्वेस्ट करना है। देन इन्वेस्ट होने के बाद आप आपका बनाओ गोल की ये होने के बाद हमारे पास इतना फंड बना है, हम अब उसको हम एक्सपेंसेस आउट करना है। तो ये बहुत, वॉरेन बफेट तो एवरीबॉडी नोज कि ये एकदम किंग है शेयर मार्केट के। तो he also wrote कि do not save what is left after spending but spend what is left after saving। अगर नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, चलो पैसा बचा है तो उसको लाइक सेविंग में डाल दो या एफडी में डाल दो, तो व्हाट रॉन्ग विद जस्ट सेविंग? इन्फ्लेशन ईट्स अप योर सेविंग ओवर टाइम। एवरीबॉडी नोज कि इन्फ्लेशन जो हमारा 6-7% रहता है, 8% रहता है, और हाउ मच वी गेटिंग सेविंग अकाउंट अभी करंटली 2.5% से स्टार्ट है, 2.5, 3, 3.5%, और एफडी करोगे तो 6-7%। तो आपका इन्फ्लेशन ही आपका ये ईट्स मतलब आपका सेविंग जो आपका इन्फ्लेशन ईट्स कर रहा है। तो जस्ट वी नॉट डिपेंड ऑन जस्ट सेविंग कि ओनली सेविंग कर लो, आपका जो है अमाउंट बचा है वो आपको सेव कर लो उसमें। नॉर्मली what does inflation do you expenses? Today if we are thinking कि आज 30,000 एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं, तो इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन अगर नॉर्मल में 5% भी ईयरली इन्फ्लेशन पकड़ू, तो 5 years बाद वो 30,000 आपका इक्वलेंट टू 40,000 होगा, 15 ईयर बाद 60,000 होगा, तो और 20 years बाद 80,000। मीन्स जो यू हैव जो एक्सपेंसेस आप 30,000 में आज आप कर रहे हो, वो आपको 15 ईयर में उसके लिए 60,000 पे करना पड़ेगा, और आफ्टर 20 ईयर 80,000 रुपीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द सॉल्यूशन टू बीट ओवर इन्फ्लेशन? द सॉल्यूशन इज स्टार्ट सेविंग अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर। जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे सेविंग करना, वो आपके लिए उतना ही बेटर रहेगा। वो आपको मैं अगले स्लाइड्स में बताऊंगा कि कैसे अर्लियर सेविंग हम कर सकते हैं, और कैसे हम उसको बेटर रिटर्न या बेटर इन्वेस्टमेंट या बेटर आपका पोर्टफोलियो बना सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्रेस फ्रॉम सेविंग टू इन्वेस्टिंग। मीन्स वी एक्चुअली आई एम थिंकिंग वी नॉट डिपेंड ऑन ओनली सेविंग, we have to save the money then invest to in other fund या other commodity, other areas जो who will generate the secondary income for over a saving। then third is one, put money to work rather than accumulating or keeping it idle। मीन्स आपका जो मनी है उसको आप आइडल रखने की जगह आप उसको इन्वेस्टमेंट करो। तो आप आपका सोच सकते हो कि आप आपका इन्वेस्टमेंट जो भी आपकी जर्नी है, आप उसको कैसे आपका वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। यू वर्क हार्ड टू अर्न मनी, सो मेक द मनी वर्क हार्ड फॉर यू, देन बेनिफिट फ्रॉम द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दिस इज द सॉल्यूशन जो हम आपके इन्फ्लेशन से जो बीट हो उससे सेव कर सकते हैं हमारी मनी। देन next again Warren Buffett said कि never depends on single income, make investment to create a second source of income। then basically everyone has a goal कि why we invest in mutual funds, और हमारा क्या गोल है, उस गोल के बेस पे हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी का गोल है कि हमको फॉरेन ट्रिप करना है आफ्टर 5 years, किसी का है कि आफ्टर 3-4 years हमको कार परचेज करना है, किसी का है हमको हाउस बाय करना है, किसी को है कि हमको आफ्टर 10 years बेस्ट एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना है, या अच्छा है, या किसी का पेंशन प्लान है कि आफ्टर रिटायरमेंट हमको एक सफिशिएंट मनी है, एक सफिशिएंट अमाउंट हमारे अकाउंट में होना चाहिए। तो always investment in assets with your specified financial goal in mind। you first set in mind कि what our goal, कि हमको आफ्टर 5 years एक अगर कार भी परचेज करनी है तो हमको आज 10 lakhs की कार परचेज या 15 lakhs की करनी है, तो उसी के लिए आज से ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब आपका गोल होगा। और बेसिकली म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका फाइनेंशियल गोल बेस ही होता है कि आपका ये गोल है, इसके लिए आप अभी से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो। अभी अलग अलग ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड तो एक ऑप्शन है कि चलो आपका इन्वेस्टमेंट वेल्थ क्रिएट करने के लिए, देन यू इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, देन इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, देन इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, देन इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, बैंक डिपॉजिट, दैट आर मेनी सोर्स ऑफ द
to generate the income. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक योर इन्वेस्टमेंट वर्क फॉर यू बट हाउ, कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो आपके लिए वर्क करे, बट कैसे वर्क कर सकता है, वी विल स्लाइड इन नेक्स्ट स्लाइड. योर इन्वेस्टमेंट शुड बी फाइट इन्फ्लेशन फॉर यू. जो आपका अभी सपोज 5 to 7% जो भी आपका 8% इन्फ्लेशन चलता है इन बिटवीन, वो आपको आपका जो सेविंग है उससे वो आपका फाइट कर सके इन्फ्लेशन से. प्रोवाइड इनकम व्हेन यू नीड इट. अब सपोज आपको आफ्टर 4 ईयर या 5 ईयर कुछ इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ गई, तो वो आपका इमरजेंसी फंड, आपका इनकम क्रिएट हो गए, वो फंड आप विड्रॉल कर सको. बी एक्सेसिबल एंड यूजेबल इन पार्ट और पोर्शन. देन ग्रोथ इन वैल्यू एंड अप्रिशिएट ओवर द टाइम. बी रिलाइजेबल एट फेयर वैल्यू एंड ए लो कॉस्ट. जो मैंने आपको पहले ही डिटेल में बताया कि लो कॉस्ट पे म्यूचुअल फंड अवेलेबल है और फेयर वैल्यू पे रिलाइजेबल हो जाते हैं. Then proper assets. Assets, what is the assets allocation? Assets allocation is like a balance thali. Balance thali means, what is the balance thali? Balance thali mein you have chapati, pulao, rice, dal, सब पापड़, हलवा, सब आपके बैलेंस था इसमें थाली में है. तो असेट्स अलोकेशन लाइक ए म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड इज आल्सो लाइक ए, you can do investment in mutual fund and you can invest your assets allocation in like a balance thali. Investment assets allocation should be match your need. अभी assets allocation आप किधर किधर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. इन्वेस्टमेंट दैट ग्रोथ इन वैल्यू, जो आपका वैल्यू बढ़ाते हैं, वो कौन कौन से इन्वेस्टमेंट है जो आपका वैल्यू आपका ग्रो करते हैं. देन यू कैन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, I think, which is generating a 8 to 9 to 12% return. Then gold, art collection, equity share, and mutual fund. Then other class of the investment is who generate the income, like a bond, national savings certificate, Kisan Vikas Patra, PPF, bank or deposit. Bank deposit who generating them means a fixed return who generate the return. But mutual fund is the main key who invest, who grow your value and generate the income. Next, I am telling you types of the mutual fund. Everybody knows कि there is a many type of mutual fund. कोई बोलता है इक्विटी फंड है, कोई बोलता है डेब्ट फंड है, कोई हाइब्रिड है, ओपन एंडेड स्कीम आती है, क्लोज एंडेड स्कीम आती है. तो आपको मैं एक एक बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स के क्या क्या टाइप होते हैं. फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट, आपका टाइप्स होता है इक्विटी फंड. इक्विटी फंड जो होता है कि इक्विटी फंड में फंड मैनेजर क्या करते हैं, आपका फंड जो होता है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं. इक्विटी सिक्योरिटीज में मोस्ट ऑफ मतलब 80% 90%, उसमें थोड़ा हायर रिस्क रहता है. देन सेकंड होता है डेब्ट फंड. डेब्ट फंड में आपका कॉमर्शियल पेपर आ जाते हैं, डिपॉजिट, कॉमर्शियल डिपॉजिट्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट के कूपन बॉन्ड आ जाते हैं, वो डेब्ट फंड होता है. हाइब्रिड फंड, जिसमें फंड मैनेजर आपका इक्विटी एंड डेब्ट दोनों में 50-50% या जो उनका रेशियो है उसमें हाइब्रिड में इक्विटी भी होता है और डेब्ट भी होता है, वो हाइब्रिड कैटेगरी में होता है. लिक्विड फंड होता है जो आप कभी भी, आज जैसे आपका पैसा पड़ा है फ्री फंड, आपने पैसा डाला, आप कभी भी उसको लिक्विडेट कर सकते हो, मींस एनी टाइम अवेलेबल फॉर लिक्विड, वो लिक्विड फंड होता है. देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ओपन एंडेड फंड, अभी जो एनएफओ आते हैं, न्यू फंड ऑफर जो आते हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो करती है, कोई कोई फंड ओपन एंडेड फंड्स होते हैं, कोई क्लोज एंडेड फंड होते हैं, कोई इंटरवल फंड्स होते हैं. ओपन एंडेड फंड्स मींस वी कैन buy or sell anytime. Open ended मतलब open for anytime investments. Means if you want to buy today, if you want to sell after 1 month, after a year, after 5 years, this is open ended fund. Close ended fund वो होते हैं जो आपने एक इन्वेस्टमेंट कर दिया, देन आपका लॉक इन हो जाता है, आप उसको सेल नहीं कर सकते. लाइक ELSS, मतलब ELSS में जैसे आपका लॉक इन होता है, तो वो लॉक इन पीरियड आपका 3 years का होता है, तो वो ओपन एंडेड स्कीम में नहीं आता, वो क्लोज एंडेड में आता है. या क्लोज एंडेड वो भी होते हैं फंड जो पर्टिकुलर फंड मैनेजर, AMC कंपनी जो असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, वो लेके आती है कि ये फंड 3 years या 5 years बाद ही आप सेल कर पाओगे, वो क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं. इंटरवल फंड जो रेगुलर इंटरवल्स में फंड्स जो AMC कंपनी NFO के थ्रू इसके थ्रू लेके आती है, न्यू फंड ऑफर के थ्रू. देन एक्टिव फंड. एक्टिव फंड वो होते हैं जो आपका सपोज अभी लार्ज
कैप फंड है कोई, तो वो सीधा लार्ज कैप कैटेगरी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है, वो एक्टिव फंड हो गया सीधा वो, या मिड कैप फंड हो गया, स्मॉल कैप फंड हो गया, जो सीधा एक्टिवली आपके फंड बाय करता है। पैसिव फंड जो फंड ऑफ फंड ऑफर होता है वो पैसिव फंड में आता है। जैसे आपने सपोज लार्ज कैप कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल लार्ज कैप कंपनी, अब फंड ऑफ फंड उसका है कोई फंड, तो वो कंपनी आईसीआईसीआई है, तो आईसीआईसी उसके आईसीआईसी के ही दूसरे फंड में इन्वेस्टमेंट करेगी, दैट कॉल्ड इज पैसिव फंड। देन अदर फंड टाइप में आपका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आता है, गोल्ड ईटीएफ आता है, ईएलएसएस आता है, रिटायरमेंट फंड आते हैं, ओवरसीज फंड आते हैं, फंड ऑफ फंड आता है। देन जैसे अभी मैंने बोला म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स है, अभी म्यूचुअल फंड्स में जैसे ये बताया कि इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, हाइब्रिड, लिक्विड फंड, तो इसके म्यूचुअल फंड्स में जो इक्विटी फंड है, इक्विटी स्कीम्स है, उसमें कौन कौन से फंड आपके कवर होते हैं। जैसे इसमें आप मल्टी कैप फंड्स है, लार्ज कैप फंड है, लार्ज मिड कैप फंड है, मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है, ईएलएसएस फंड है, ये सब इक्विटी स्कीम फंड है। ऑलवेज ये मतलब इसमें ऐसा है कि 85% तक आपका पैसा इक्विटी मार्केट में ही जाता है। देन डेप्थ स्कीम में आपका लिक्विड फंड आ गया, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड आ गया, लो ड्यूरेशन फंड आ गया, मनी मार्केट फंड है, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है, मीडियम ड्यूरेशन फंड है। दिस इज डेप्थ स्कीम, कवर्ड इन डेप्थ स्कीम। हाइब्रिड फंड इज both the equity plus debt, this called is a hybrid schemes। हाइब्रिड स्कीम्स में आपके कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है, बैलेंस हाइब्रिड फंड है, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। डायनेमिक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में ये है कि थोड़ा इक्विटी में पोर्शन उनका ज्यादा होता है, 65% तक एग्रेसिवली हाइब्रिड है, मतलब एग्रेसिवली इक्विटी हाइब्रिड फंड भी होते हैं आपके, और एग्रेसिवली डेट फंड भी होते हैं। बैलेंस हाइब्रिड फंड है, डायनेमिक एसेट्स एलोकेशन है, मल्टी एसेट्स एलोकेशन है। मल्टी एसेट्स एलोकेशन में फंड मैनेजर इन्वेस्ट इन इक्विटी स्कीम्स आल्सो, डेब्ट स्कीम आल्सो, एंड कमोडिटी मींस इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड आल्सो। देन इक्विटी सेविंग स्कीम एंड आर्बिट्राज फंड। देन इफ सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम चाहिए तो रिटायरमेंट फंड है, चिल्ड्रन फंड से, इंडेक्स फंड है, फंड ऑफ फंड है। देन अदर स्कीम में इंडेक्स फंड, ईटीएफ और फंड ऑफ फंड ऊपर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि म्यूचुअल फंड्स में इतनी सारी स्कीम है, हाउ कैन वी डिटरमाइन कि विच फंड इज गुड एंड विच फंड वी कैन वी वांट टू इन्वेस्ट, विच वांट टू बाय। तो this depend on the criteria of the risk। Actually somebody wants to take higher risk, somebody can take, somebody say कि I can only take moderate risk, somebody can say कि I want low risk, मैं I can't take much more risk। so there is a depend risk structure है, उसके अकॉर्डिंग किस किस फंड में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो आपको मैं बताता हूँ। if you are if you get higher risk and you want higher return, then equity scheme is the fund is suitable for the both the higher risk and higher return। अगर आपको मॉडरेट रिस्क चाहिए या मॉडरेट रिटर्न चाहिए तो हाइब्रिड ऑप्शन इज बेस्ट है। इफ you want to if you want low risk and low return, then that scheme is better। because equity scheme everybody knows कि equity scheme is depend on the market risk। अगर मार्केट आपका अप जाएगा तो आपका पोर्टफोलियो प्लस में रहेगा, गेन आएगा, अगर आपका माइनस में आता तो एनएवी उसका डाउन हो जाएगा। और डेप्थ में क्या होता है, एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न से मिलता रहता है, मीन्स अगर आपने लिक्विड फंड में या लो ड्यूरेशन या इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें 6% 7% जो भी रेट ऑफ चल रहा है, उस रेट ऑफ रिटर्न उसमें जो मिल रहा है वो आपको मिलता रहता है। और आपको चाहिए नहीं मेरी वेरी लो रिस्क चाहिए और लोअर रिटर्न चाहिए, तो देन लिक्विड स्कीम इज द गुड ऑप्शन फॉर दिस कैटेगरी। अभी नेक्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम विच वांट टू बाय मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट है रिस्क और रिटर्न के हायरार्की पे अपन किस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मींस इक्विटी फंड में भी अभी जैसे इसमें बताया कि आपको हायर रिस्क हायर रिटर्न चाहिए तो इक्विटी स्कीम में इन्वेस्ट करो। तो इक्विटी स्कीम में कौन सी स्कीम्स है जिसमें इसमें भी लो मिड और हाई रिस्क रहती है। तो लो रिस्क किसमें रहती है, इक्विटी स्कीम में। मीन्स आपका इक्विटी स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया तो आपको रिटर्न तो मिलना ही है, हायर रिटर्न और हायर रिस्क तो रहता ही उसमें। देन इसमें भी अलग अलग कैटेगरी होती है जिसमें हम अगर आपको जैसे उसमें इक्विटी में स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया, अगर आपको लो रिस्क चाहिए तो यू इन्वेस्टमेंट इक्विटी सेविंग फंड हो गया, इक्विटी ओरिएंटेड फंड हो गया। अगर मीडियम रिस्क चाहिए तो आपको लार्ज कैप फंड, डाइवर्सिफाई फंड है,
मिड कैप फंड है, ये आपके रिस्क जो है मीडियम रिस्क रहती है, और हाई रिस्क रहता है कोई सेक्टरल फंड होता है, तो उसमें थोड़ा रिस्क हाई रहता है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल डिफेंस फंड है, तो वो सेक्टरल फंड है, या टेक्नोलॉजी फंड है तो वो सेक्टरल फंड है। तो जब टेक्नोलॉजी चलती है तो आपका रिटर्न अच्छा आएगा, और जब टेक्नोलॉजी या डिफेंस फंड जब डाउन हुए तो आपका रिटर्न उसमें घट जाएगा। तो उसमें क्या रिस्क रहता है कि यार जब वो सेक्टर चलेगा तभी आपका रिटर्न बनेगा। तो इसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है कि सेक्टरल फंड से नॉर्मली अवॉइड करना चाहिए आपको। अगर मीडियम रिस्क चाहिए तो लार्ज कैप हो गया, मिड कैप फंड हो गया, स्मॉल कैप फंड हो गया, या लो चाहिए तो इक्विटी सेविंग फंड हो गया, इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड हो गए। देन डेप्थ में भी सेम कैटेगरी। आपको अगर लो रिस्क चाहिए डेप्थ में, ये है कि आपका जैसे बोला कि आपको लो मॉडरेट रिस्क या लो रिटर्न होता है और लोअर रिटर्न होता है, तो देन आपको इसमें भी ऐसा है कि अगर आपको जैसे कम रिस्क चाहिए तो आप ओवरनाइट फंड हो गया, लिक्विड फंड हो गया, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड हो गया। मिड चाहिए तो आपको शॉर्ट टर्म हो गया, शॉर्ट टर्म फंड हो गया, या लॉन्ग टर्म फंड हो गए। देन हाई रिस्क में आपके गिल्ड फंड, डेप्थ ओरिएंटेड फंड आ जाते हैं। अभी नेक्स्ट ये हमने अभी डिस्कस किया कि म्यूचुअल फंड्स में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन सी स्कीम्स है, किस फंड में कब किसके रिस्क रिस्क कैपिटाइल के ऊपर अपन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन कौन से फंड है जो इक्विटी में डेप्थ में रिस्क डिटरमाइन करते हैं। देन अभी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि इसमें कौन कौन सा मोड होता है जो अपन इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं। फर्स्ट है लमसम इन्वेस्टमेंट। लमसम इन्वेस्टमेंट्स में क्या होता है कि आपका एक साथ जैसे कोई फंड पड़ा हुआ, आपको अगर इक्विटी फंड में डाल, किसी भी फंड में वॉटेवर फंड में डालना है, तो आप में वन टाइम पेमेंट करके उसको एनएवी से उसका आप ये बाय कर सकते हो, यूनिट बाय कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स की। वो हो गया लमसम इन्वेस्टमेंट। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है कि आपका मंथली आपने चूज किया कि मेरे को यार 5,000 इन्वेस्टमेंट करना है, तो हर महीने आपका एसआईपी के थ्रू, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू 5,000 एवरी मंथ आपका इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। देन नेक्स्ट होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान में क्या होता है कि जैसे आपका कोई लग रहा है कि आपको नहीं, यहाँ मार्केट बहुत ऊपर है, अभी मेरे को थोड़ा पैसा एक साथ में, अभी पैसा लमसम इन्वेस्टमेंट मेरे को इक्विटी मार्केट में, मैं इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन मार्केट इज वेरी हाई, तो इस करंट मतलब अभी नहीं, मैं ऊपर रेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। मैं उसको चाहता हूँ कि ओवर द पीरियड मेरा जो परचेज है वो सिस्टमेटिकली होता रहे इक्विटी फंड में। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें लमसम में जैसे डेथ फंड में पैसा डाल दिया लमसम इन्वेस्टमेंट में, देन वहां से हमने एसटीपी कर दिया इक्विटी फंड में। तो इक्विटी फंड में आपने जैसे सपोज 1 लाख डाला, आपने हर एक महीने बोला कि मेरे ये 1 लाख का लमसम का इन्वेस्टमेंट किया, इससे हर महीने 10,000 रुपए मेरे दूसरे फंड में जाना चाहिए, तो सिस्टमेटिक ट्रांसफर हो जाता है दूसरे फंड में। और इंटर स्कीम स्विच भी होता है कि आपने सेम एएमसी में आप इंटर स्कीम स्विच भी कर सकते हो। तो देर आर मेनी मतलब 4 टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। देन मेजर जो हम लोग जानते हैं, एक लमसम इन्वेस्टमेंट है और सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान है। तो इसमें दोनों में डिफरेंट क्या होता है कि जो एसआईपी है वो ग्रेजुअली मंथली बेसिस पे होता रहता है, धीरे 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 आपका इन्वेस्टमेंट होता रहता है। और लमसम आपका जैसे आई टोल्ड की 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होता है लमसम। रिस्क इसमें एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में रिस्क लो होता है, क्योंकि ये मार्केट एवरेजिंग करता है। जैसा कि जैसे सपोज मार्केट ऊपर आपका चल रहा है अभी, तो आपको यूनिट कम मिलेगी। जैसे मार्केट डाउन हुआ तो यूनिट और थोड़ा एक्यूमुलेटेड हो जाएगी, यूनिट्स एनएवी डाउन हुई तो आपको यूनिट ज्यादा मिलेगी, और डाउन हुई तो आपको यूनिट ज्यादा मिलेगी। तो इसमें रिस्क का क्या होता है कि जैसे सपोज आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, उस टाइम आपका एनएवी चल रहा था सपोज 10 रुपीज, तो आपके पास 10,000 यूनिट बाय हो गई। नेक्स्ट मंथ आपका सपोज मार्केट डाउन हुआ और आपका वो एनएवी घट के 8 रुपीज हो गया, तो आपका वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट लमसम में वो पूरा इन्वेस्टमेंट आपका 80,000 हो जाएगा। बट एसआईपी में क्या होगा, जैसे आपने फर्स्ट टाइम आपने 10,000 सपोज इन्वेस्टमेंट किया फर्स्ट मंथ में, तो 10,000 में आपके 1,000 यूनिट सही, सपोज आपके पास 8 रुपीज हुई, तो वन लगभग 1,200 यूनिट्स को चाहिए। सपोज इसके बाद आपका 5 रुपए हो गया तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिल गई, या 11 हो गया, 12 हो गया तो आपको कम यूनिट मिल गई। तो इसमें लोअर रिस्क लोअर रहती है, मार्केट एवरेजिंग होता रहता है। नॉर्मली एसआईपी है जो आइडल होता है सैलरी और रेगुलर इनकम वालों के लिए, जिनको मंथली इन्वेस्टमेंट करना है। और लमसम होता है इंडिविजुअल विद आइडल कैपिटल, जिनके पास आइडल कैपिटल पड़ा है किसमें सेविंग में डाल रखा है, उनके लिए वो लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 1 टाइम में।
Systematic investment plan is a method of investing of fixed sum at a regular interval in a mutual fund scheme, similar to monthly saving scheme like a recurring deposit. Everybody knows what is the RD. RD में recurring deposit में आप monthly आपका investment होता रहता है. It's like a RD. अगर आपको secondary समझना होता हो. Systematic investment plan जो है उसके advantage क्या है? Advantage ये एडवांटेज इज दैट कि एनेबल रेगुलर इन्वेस्टमेंट विदाउट एनी एडिशनल पेपर वर्क. आपने एक बार आपने सेट कर दिया कि मेरा मंथली एसआईपी है 10,000 का मंथली एसआईपी आपने कर दिया और ये मैंडेट कर दिया, तो आपका एवरी मंथ आपने कोई डेट डिसाइड किया जैसे 5th ऑफ एवरी मंथ, तो 5th ऑफ एवरी मंथ में आपका रेगुलर इन्वेस्टमेंट होता रहेगा. आपको कोई पेपर वर्क नहीं करना, कुछ नहीं करना, केवल इनिशियली एक बार स्टार्टिंग में आपको आपका केवाईसी करके अकाउंट ओपन करके एक ई मैंडेट से डेट फिक्स कर देना कि 5 तारीख को मेरा हर महीने एसआईपी होता रहेगा, तो आपका ऑटोमेटिकली 5,000 मतलब 10,000 5,000 जो भी आपने डिसाइड किया वो एवरी मंथ आपके अकाउंट से डिडक्ट होता रहेगा. नेक्स्ट एडवांटेज इज कन्वीनियंट वे टू इन्वेस्ट रेगुलरली थ्रू वन टाइम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन. जैसे आपको मैंने अभी बताया कि आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट दे दिया कि वन टाइम इंस्ट्रक्शन दे दिया कि 5th या 10th या 15th को आपको एवरी मंथ को डिडक्ट करना, तो एवरी मंथ आप एक बार आपको इंस्ट्रक्शन देना है, आप जब तक चलता रहेगा एसआईपी आपका तब तक उसी डेट को आपका पैसा विड्रॉल होता रहेगा बैंक में और इक्विटी मतलब जो भी फंड आप चूज करोगे उसमें इन्वेस्टमेंट होता रहेगा. देन एसआईपी इज कन्वीनियंस ऑफ ए स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स मींस आपने मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि 100 इवन यू इन्वेस्ट 100 रुपीज तो आपका स्मॉल इंस्टॉलमेंट से भी आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो. ऐसा नहीं कि आपको कोई मिनिमम क्राइटेरिया है उसमें. रुपये कॉस्ट एवरेजिंग बेनिफिट मिलता है, वो आपको मैं आगे एक स्लाइड्स में बताऊंगा कि रुपये कॉस्ट कैसे एवरेजिंग बेनिफिट आपको एसआईपी में मिलता है. और नो टाइमिंग द मार्केट. Then compounding review is that time beats timing means at 25 year old investing 5,000 monthly will like outperform of 35 year old investing 10,000 monthly. इसको I'll explain with example. Just a minute. जो मैंने ये बताया था कि कंपाउंडिंग आपको पहले मैंने एक बताया था बेनिफिट है कंपाउंडिंग, इसमें कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है आपको म्यूचुअल फंड्स में. तो कंपाउंडिंग कैसे आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट है आई विल एक्सप्लेनिंग. एट 25 years old investing 5,000 monthly, if I am investing ये स्लाइड्स दिख रही है सबको 5,000 वाला? Yes, sir. दिख रहा ना? तो हमने सपोज 5 ईयर मंथली इन्वेस्टमेंट किया, एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने 12% पकड़ा. 12% आई टेक 12% एवरेज रिटर्न एंड टाइम पीरियड इज 25 years. Then your total investment is rupees 15 lakhs and your total gain of 25 is 70 lakhs means your total market value at the rate of return is 12% is rupees 85 lakhs 11,033 rupees. ये आपने 5,000 का इन्वेस्टमेंट किया, 25 ईयर से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. देन नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको बताता हूँ एक 10,000 का मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया सेम रेट ऑफ रिटर्न लेकिन आफ्टर 10 years. तो यू कैन सी द बेनिफिट दैट टोटल इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 18 lakh in 10,000 SIP and in 5,000 SIP you investment only 15 lakh rupees but over gain is 70 lakhs. Then in 10,000 SIP we will get 20 means approximately 30 lakhs gain. तो आप लोग देख सकते हो कि एक जो हमने फंड जल्दी स्टार्ट किया था उसमें गेन हमको 70 lakhs मिला इवन 5,000 का SIP था और एक 10,000 का SIP किया लेकिन वो 10 years बाद किया तो उसमें 30 lakhs का ही गेन मिला. तो ये आपको समझ में आया. 25 years old investing 5,000 monthly will like outperform at 35 year old investing 10,000 monthly. Then जो आपका एक हाँ पेशेंस प्रीमियम
पेशेंस प्रीमियम क्या है, जो आपका लास्ट 5 इयर्स, आपने सपोज को 20 इयर्स की एसआईपी स्टार्ट करी हुई है, ठीक है, तो आपका जो लास्ट 5 इयर्स का जो भी लास्ट 5 इयर्स की जो इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ होगा आपका 40% ऑफ वैल्यू, 40% ऑफ वैल्यू ग्रोथ करेगा टोटल टोटल वेल्थ का। मीन्स आई कैन से, अगर सपोज मैंने यहाँ पर 20 इयर्स का ये एसआईपी था, एक मिनट, दिस, ये जो मैंने 25 इयर्स का एसआईपी था, जो मेरे लास्ट 5 इयर्स की एसआईपी है, मेरा 40% गेन इसमें, 70% में जैसे 40% अप्रोक्सीमेटली 30 लैक्स, 30 लैक्स गेन मेरा लास्ट 5 इयर्स की एसआईपी से, जो टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा एक्यूमुलेटेड होता गया, उसमें से लास्ट 5 इयर्स का जो गेन है वो अराउंड, इसका जैसे 35% है ना, 50%, 40% मीन्स 40% अराउंड 30 लैक्स, 30 लैक्स का गेन मेरा लास्ट 5 इयर्स का है। तो लास्ट 5 इयर्स पेशेंस प्रीमियम में अगर आप जितना अच्छा सोचोगे, नॉर्मल अभी देखें तो मार्केट सिनारियो में मैं लगभग एवरेज मांग के चलिए आप 3 से 5 साल तक का इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया रहता है। कोई मोस्टली 3 साल 5 साल तक एवरेज मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट आपका गोल बेस बना के और एक लॉन्ग टर्म पीरियड्स के लिए किया, आपने सपोज 10 ईयर 15 ईयर 20 ईयर के लिए किया, तो आपका वेल्थ जो गेन क्रिएट होगा वो बहुत मतलब अच्छा गेन क्रिएट होगा ऐसा। और इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने एसआईपी स्टार्ट कर दिया, आपने उसका मंथली उसका आपने ईयरली रिव्यू नहीं किया, कोई फंड आपको समझ में आया कि नहीं आया, यार फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो यू शुड ऑप्शन की यू हैव टू चेंज दैट फंड। आपको हर एवरी ईयर्स आपको आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। सपोज अलग अलग जैसे क्लाइंट है, स्टार्टिंग एज किसने 28 इयर्स में स्टार्ट किया, किसने 26 ईयर में, किसने 35 इयर्स में, 30 इयर्स में। अब इनका सबका, चारों लोगों का, चारों पर्सन का अलग अलग गोल था कि एक को होम लोन क्लियर करना था अर्ली, एक का चिल्ड्रन एजुकेशन का था, एक का प्रॉपर्टी परचेज करना था, एक का कंफर्टेबल रिटायरमेंट प्लान था, किसको 2.5 करोड़ का प्रॉपर्टी परचेज करना था, किसको 2 करोड़ का एक रिटायरमेंट प्लान चाहिए था कि मेरा आफ्टर 20 इयर्स मेरे को एक अमाउंट मिल जाए मेरे पेंशन के लिए, और किसका होम लोन क्लियर करना था, और किसका चिल्ड्रन एजुकेशन का था कि किसको 1 करोड़। आजकल नॉर्मल 1 करोड़ 50 लैक्स तो नॉर्मल एक हायर स्टडी के लिए नॉर्मल अमाउंट हो गया। तो आपको अभी से प्लान करना पड़ेगा कि आपके चिल्ड्रंस के लिए एक एजुकेशन जो आपको 20 इयर्स में जो भी अमाउंट लगने वाला है, 50 लैक्स 1 करोड़ 2 करोड़, वो अभी से प्लान करना पड़ेगा। तो आप आपका एक जो ये है ना कि आप उस टाइम किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, नहीं तो एजुकेशन लोन वगैरह जो अदर ऑप्शन वो आपको चूज करने पड़ेंगे। तो सबका अलग अलग था। इसकी इनकी सबकी स्टार्टिंग एज डाली, सबने इनिशियल अमाउंट 5,000, किसने 3,000, 8,000, 6,000 से स्टार्ट किया। और देन 20 इयर्स बाद इसमें मैंने एक सिप ग्रोथ एनुअली 10% लिया है। मतलब सपोज फर्स्ट ईयर आपका 5,000 हर महीना आपने इन्वेस्टमेंट किया, देन सेकंड इसमें आप एसआईपी में ऐसा भी कर सकते हो, सेकंड ईयर से एवरी ईयर से 10% ऑफ एनुअली एसआईपी आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाए। मीन्स आपने फर्स्ट ईयर 5,000 किया, देन सेकंड ईयर से ऑटोमेटिकली वो 5,500 हो जाएगा। तो आफ्टर 20 इयर्स अलग अलग फंड टाइप लिए मैंने, एवरेज रिटर्न जो एक्चुअल में एवरेज रिटर्न मिला है वो एवरेज रिटर्न लिया है। टोटल इन्वेस्टमेंट 30,25,000 का हुआ। देन पोर्टफोलियो वैल्यू इज 1 करोड़ 92 लैक्स, मीन्स एट द एज ऑफ 40 इयर्स, मीन्स 6.37 मल्टीप्लाई है। तो आप आपका गोल जो भी है आप एक डिसाइड करके गोल प्लान कर सकते हो कि और कैसे आपको आगे के पीरियड्स के लिए फंड एक्यूमुलेटेड करना है, या कोई भी गोल है आपका, अभी से प्लान करके आप स्टार्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। और ये भी अलग अलग मैंने लिए कि किस किस फंड ने कितने कितने रिटर्न किए, तो उस हिसाब से मैंने पर मंथ मतलब ऑन एन एवरेज किसी भी ये फंड है जिसने, कोई भी फंड आप देखोगे ना, बेकार से बेकार फंड भी 12% का रिटर्न आया ही है लास्ट 10 to 15 इयर्स की म्यूचुअल फंड की सभी कंपनी ने दिया ही है। तो एक एवरेज बेस हम ले लेते हैं कि 12% रिटर्न तो एक मिलना ही है ऐसा। बट रिस्क भी है, इट्स डिपेंड ऑन मार्केट रिस्क। मैंने आपको पहले की स्लाइड में बताया था कि यूपी कॉस्ट जो अपना है कैसे एवरेज होता है, तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। सपोज हम एवरी मंथ आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, 4 5 6 मंथ, देन 10,000 यू इन्वेस्ट
investing SIP systematic investment plan on every month. Then suppose आपको first month NAV था 10 rupees, then 10.5, then NAV every month बढ़ता गया. तो जो आपको यूनिट अलॉट हुई है फर्स्ट मंथ में आपको 10,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया, then NAV is running at 10 rupees, then you allotted 1,000 units. Then second month आपका 10.5 हुआ NAV, then you allotted 952 units. Then third month, then 4, 5, 6 month, then total जो है आप यूनिट फर्स्ट राइजिंग मार्केट में करोगे, ये हर मार्केट आपका राइज होता जा रहा और आपको देखिए यूनिट कम 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 मिलती जा रही है. तो टोटल यूनिट आपको मिली है. Excuse me, sir. हाँ सॉरी. Sir, excuse me, sir. Sir, your PPT is not visible. This is the calculator we can see on the screen. अच्छा, जस्ट अ मिनट. स्टॉप. अच्छा स्टॉप शेयर. नाउ इट्स विजिबल. Yes, sir. Now it is visible. तो आई एम टेलिंग कि SIP हाउ रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हेल्प. तो देन आई एम टेलिंग कि आपने फर्स्ट मंथ 10,000 इन्वेस्टमेंट किया, एवरी मंथ आप SIP से 10,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. आपका मार्केट आपको पता है राइजिंग मार्केट, अभी मार्केट सपोज राइजिंग है तो आपका NAV आपका बढ़ता जा रहा है 10 वाट, नेक्स्ट मंथ 10.5 वाट, 12, 14, 17, 18. Then you allotted 1,000 units in first month, then in second month 952, then in third month 833, in 5 month 588, in 6 month 555.56. So you accumulated in 6 months total unit accumulated 4,643. Then अगर आपका इससे अगर आप देखोगे तो आपका यूनिट का जो एवरेज कॉस्ट है, आपका एवरेज कॉस्ट अराउंड पर यूनिट है आपका 12 रुपीज 92 पैसा. मीन्स आपने जो इन्वेस्ट टोटल जो आपने यूनिट अलॉट हुई है 4,600, वो आपकी एवरेज कॉस्ट 12.92 रुपीज पे है. और अगर आपका सपोज 6 मंथ में 18 चल रहा होगा तो ये मल्टीप्लाई जो आपको यूनिट मिली 4,643 इंटू मल्टीप्लाई बाय 18 मीन्स अराउंड लगभग 80-90,000 कुछ अमाउंट हो गया रहेगा उसका. ऐसा तो राइजिंग मार्केट में भी आपको फायदा मिलता है. देन फॉलिंग मार्केट, जैसे सपोज फॉलिंग मार्केट और फर्स्ट मंथ सपोज, ऐसा नहीं कि मार्केट हमेशा राइजिंग ही होता है, मार्केट कभी फॉल भी होता है. बट कीप इन माइंड कि आदमी और मार्केट को ऊपर ही जाना है. कहाँ से मार्केट सेंसेक्स 100 रुपीज से स्टार्ट हुआ, आज कहाँ पहुंच गया एवरीबडी नोज. निफ्टी कहाँ था और किधर हो गया, सभी जानते हैं कि मार्केट और आदमी को ऊपर ही जाना है. तो फॉलिंग मार्केट में भी आप देखोगे तो फर्स्ट मंथ आपको 1,000 यूनिट अलॉट हुई, अगर सेकंड मंथ 9.75 है देन आपको यूनिट्स ज्यादा मिला है यहाँ पर. देन 9 है तो इधर ज्यादा मिला है. 7 जैसे से NAV कम होता गया आपको यूनिट अलॉट होता गया. अगर राइजिंग मार्केट में देखोगे तो आपको 4,643 यूनिट अलॉट हुआ. बट अगर फॉलिंग मार्केट में भी देखोगे तो आपको 7,770 यूनिट्स अलॉट हो गया. तो ये आपको एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है. ये थी कि इसमें जाते हुए अगर अपन देखेंगे तो आपका ये टोटल वैल्यू कम हुआ, लेकिन हम 6 मंथ में डिटरमाइन नहीं कर सकते कि आपका कितना वैल्यू होने वाला टोटल. तो आपको इन्वेस्टमेंट तो एटलीस्ट लॉन्ग टर्म के लिए होना ही पड़ेगा, मिनिमम 5 ईयर्स के लिए. देन यू चूज कि आपका जो एवरेज जो फायदा मिल रहा है इधर ये फॉलिंग मार्केट में, उसका फायदा आपको नियर टर्म में मिलेगा. अगर वॉलेटाइल मार्केट भी रहता है, सपोज वॉलेटाइल मार्केट है, कभी NAV 10 हुआ, कभी राइजिंग मार्केट में 10.5 हो गया, फॉलिंग मार्केट में अगेन 9 हो गया, सपोज वॉलेटाइल मार्केट चलता है तो भी यू एक्यूमुलेटेड 5,611 यूनिट्स है. और इसका एवरेज आपका ये देखो वोलेटाइल मार्केट में भी इसका एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आया 10.70. अगर सपोज 11 रुपीज भी चल रहा होगा तो आपका मल्टीप्लाई 5,611 मल्टीप्लाई बाय 11.5 रुपीज जो आपका है, तो आपको मालूम पड़ेगा आपका कितना गेन हुआ है पोर्टफोलियो का. तो ऐसा ये आपको को इसमें ऊपर राइजिंग मार्केट में, फॉलिंग मार्केट में, वोलेटाइल मार्केट में एवरेजिंग का फायदा रहता है. अगर सपोज आपने सपोज फॉलिंग मार्केट या वोलेटाइल मार्केट में अगर 10 रुपए पे भी इन्वेस्टमेंट एक साथ लमसम में डाल दिया रहता, देन आपको इस एवरेजिंग का फायदा नहीं मिलता. अगर उस टाइम डाल दिया रहता तो आपको उस टाइम अलॉट जो NAV चल रहा है उसमें मिल जाता था. लेकिन अगर आप बाद में देखोगे तो आपका इसका जो वोलेटिलिटी में जो NAV ऊपर नीचे हो उसका फायदा आपको यूनिट कम ज्यादा में मिला है. अभी
बैटल टेस्टेड SIP स्ट्रेटजी ये है कि स्टार्ट इमीडिएटली, बिगिन विद सस्टेनेबल अमाउंट, डोंट वेट फॉर द राइट टाइम। हम सोचते हैं जब भी बात करते हैं किसको बात किया है, कुछ बोलते तो यार राइट टाइम आएगा तो फिर करेंगे, या थोड़े टाइम बाद करेंगे, सोचेंगे, पूछेंगे। ये अगर आपको आपका वेल्थ क्रिएट करना है तो डोंट थिंक अबाउट मच मोर एंड यू डोंट वेट फॉर राइट टाइम। एवरी टाइम इज ए राइट टाइम। मार्केट अगर शुरू से, अगर कोविड में भी स्टार्ट किया तो भी राइट टाइम है SIP के लिए, आज भी स्टार्ट कर रहे हो तो भी राइट टाइम है। तो आप कभी ये मत सोचे कि राइट टाइम आएगा तब, या मार्केट गिरेगा तब इन्वेस्टमेंट करूंगा। कोविड के 1-2 साल बाद किसने सोचा होगा मार्केट अगेन डाउन होगा तब सोचूंगा, तो वो अभी तक सोच ही रहा है, क्योंकि वो अभी मार्केट उसके बाद डाउन हुआ ही नहीं, और डाउन हुआ तो थोड़ा बहुत 10-15% हुआ। तो कभी राइट टाइम नहीं होता। अगर इफ यू वांट टू इन्वेस्ट टुडे देन इन्वेस्ट टुडे ओनली, और उसको एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करो। और अगर आपको आपका वेल्थ क्रिएट करना है, जैसे अभी मैंने लास्ट इसमें समझा है, आपको लास्ट बताया कि जैसे फॉलिंग मार्केट में मार्केट एनएवी डाउन होता जा रहा तो आपको यूनिट ज्यादा मिलती जा रही है। तो क्या है कि आपको, अगर ऐसा मार्केट मार्केट सीधा सीधा अप ट्रेंड में नहीं जाता, मार्केट कभी इस वे में जाता है, जैसे हार्ट बीट होती है, जैसे ऊपर नीचे, वैसे मार्केट ऊपर की तरफ जाता रहता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका मार्केट बियर मार्केट कभी आया कोई रीजन से, जैसे अभी रशिया यूक्रेन हुआ, इंडिया पाकिस्तान का वो हुआ वॉर, या अभी बहुत सारे अभी जैसे ट्रम्प का चल रहा है ये इसका टैक्स का, तो आप उसमें मार्केट जो डाउन होता है उसमें आप यूं मत सोचो कि मार्केट डाउन हो गया तो मेरा पोर्टफोलियो डाउन हो गया। उसमें आप ट्राई करो कि कोई एक, जैसे आपका चल रहा है SIP तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा। जैसे कभी बीच में आपका SIP डेट है 5 तारीख, 5th ऑफ एवरी मंथ, अगर 20 या 25 को मार्केट सपोज किसी भी रीजन की वजह से डाउन हुआ, या 5% या 10% या गिरा 1-2 महीने में या 5-6 महीने में, तो आप एक बीच में टॉपअप मार दो। तो उससे क्या होगा कि आपका जो यूनिट है वो एक्यूमुलेटेड ज्यादा हो जाएगा, और कम एनएवी पे आपको उसका फायदा लॉन्ग टर्म पीरियड में मिलेगा। तो डाउन टर्म एडवांटेज हमेशा उसमें लोगे तो आपको वेल्थ वेल्थ तो क्रिएट होगा, लेकिन डाउन टर्म में और अच्छा वेल्थ क्रिएट हो जाएगा आपका। गोल बेस्ड अलोकेशन, हमेशा आपका SIP जो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट जो भी प्लान, आपका गोल बेस्ड अलोकेशन ही होना चाहिए। आपका गोल है कि मेरे को आफ्टर 10 इयर्स 1 करोड़ या 2 करोड़ का मेरे को पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग फ्रॉम टुडे ओनली, और फॉर जो भी आपका पीरियड है 10 ईयर 12 ईयर या 5 ईयर, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान चूज कर लो आज अभी से, और आप स्टार्ट इमिडिएटली विद SIP। एनुअली हेल्थ चेकअप, मैंने बताया कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसका एनुअल हेल्थ चेकअप भी करते रहो, कि आपका रिव्यू करते रहो, परफॉर्मेंस देखते रहो। अगर आपको लगता है कि कोई अच्छा फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, या कुछ उसमें ज्यादा मतलब फंड मैनेजर छोड़ के चला गया, अच्छा जो अच्छा फंड मैनेजर था उसने किसी में स्विच ले लिया, या कोई भी रीजन की वजह से सपोज आपका परफॉर्मेंस नहीं दिया, तो उसको रीबैलेंस करो। ऐसा नहीं कि वो फंड में डालते ही जा रहे हो, उसको स्टॉप करके किसी और फंड में इन्वेस्टमेंट करो, या उसको रीबैलेंस करो अंडर परफॉर्मिंग फंड्स को। द कंसल्टेंट इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी जो मैं आपको देना चाहूंगा, डिसिप्लिन ओवर इंटेलिजेंस। आपका जो कंसिस्टेंसी की द सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग मीन्स, आपका कंसिस्टेंसी होना चाहिए। आपने जैसे कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, आपने 1 ईयर किया, 2 ईयर किया, 3 ईयर के बाद उसको स्टॉप कर दिया, तो कंसिस्टेंसी नहीं, तो आपको कभी भी आपका पोर्टफोलियो आपको क्रिएट करके नहीं देगा। आपका जो गोल है कभी आपका फुलफिल होगा ही नहीं है। ऐसा नहीं कि मार्केट बढ़ा तो अरे यार मार्केट बढ़ रहा मैं बेच देता हूँ उसको, ऐसा नहीं। उसको कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहो अनलेस एंड अनटिल आपको उस फंड की रिक्वायरमेंट है, या आपका गोल पूरा हो गया तो आप उसको उस पर्टिकुलर फंड को आप स्टॉप कर सकते हो। बट आपकी कंसिस्टेंसी होना जरूरी है, और उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। टाइम आर्बिट्राज, स्टार्ट अर्ली, leverage टाइम फॉर वेल्थ बिल्डिंग, which already I explained। और SIPs न्यूट्रलाइज इमोशनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अभी अगर आप देखोगे ना तो मार्केट में, अगर सपोज आप शेयर्स में अगर पैसा डाला है, तो सपोज थोड़ा पैसा बढ़ा तो हम मोस्टली क्या सोचते हैं, चलो यार उसका आप बेच दो, अपन को गेन हो रहा है, या उसको बेच दो, या कोई लॉस हो गया तो उसको होल्ड रखते चल जब तक वो प्रॉफिट में नहीं आ जाए। तो यहाँ पर SIP म्यूचुअल फंड में करने का क्या है, सबसे अच्छा बेनिफिट है कि अपना इमोशनल इमोशनल हम ये नहीं कि इसका फंड बढ़ रहा है इसको प्रॉफिट हुआ बेच दो, हम हमारा गोल बेस बना के हम उसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमारा एक इमोशनल साइड में हो जाएगा कि यार
कोई बेचना नहीं जब तक मेरा गोल पूरा फुलफिल नहीं हो जाए या मेरे को इमरजेंसी फंड की जरूरत नहीं पड़े। सिंप्लिसिटी विन सिंपल सस्टेंड एंड एसआईपी क्रिएट ए मिलियनरीज। अभी जो मैंने आपको बताए थे कोई लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड या स्मॉल कैप फंड, तो लार्ज कैप कैटेगरी में वो फंड आता है जो जिसका मतलब आप देखोगे तो टोटल कंपनी में से 100 कंपनी नियर बाय जो लार्ज कैप कैटेगरी आता है जिनका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है, वो लार्ज कैप कैटेगरी में आती है। जिसमें अगर देखोगे तो आपका 280 ट्रिलियन मार्केट कैप कवर करता है आपकी लार्ज कैप कंपनी, मतलब और टोटल आपकी जो भी कंपनी है जो आपका 100% है, आपका 100 कंपनीज आपका 61% मार्केट कैप कवर कर लेती है और 280 ट्रिलियन आपका मार्केट कैप कवर करती है। मिड कैप कंपनी भी नियर बाय 150 कंपनी मिड कैप है जिसका मार्केट कैपिटल रेंज होता है 33,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपीस तक, वो मिड कैप कंपनी में कवर होती है। ऐसी मिड कैप कंपनी जो है 19% है टोटल, और स्मॉल कैप कंपनी तो बहुत मतलब लगभग 2500-2300 कंपनी है जो स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है जिसका मार्केट कैप 33,000 करोड़ से कम हो, वो सब स्मॉल कैप कंपनी की कैटेगरी में आते हैं। ये एक मीन्स आप देखोगे ना तो स्टार्टिंग से कंटिन्यूस एवरी मंथ एसआईपी का इनफ्लो कंटिन्यूस बढ़ रहा है। आप देखोगे तो अभी ये डेटा जैन जून दिसंबर 24 तक है। इस पैराग्राफ में आप देखो कहाँ से आपका 8,000 करोड़ से जैन 21 में स्टार्ट हुआ था, हर एवरी मंथ आपका ये कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है। जो आपका दिसंबर 24 में 26,000 करोड़ का सिप का इनफ्लो है टोटल, और अभी का रिकॉर्ड अभी का लेटेस्ट डेटा आया है कि लास्ट मंथ का जून 2025 का मंथली सिप SIP inflow have increased 28% from 21,000 करोड़ to 27,000 करोड़। अभी 26,000 करोड़ तो दिसंबर 24 में हो रहा है, ये बढ़ के अभी जून में 27 करोड़ के ऊपर पहुंच गया, मतलब 28% आपका ईयर ऑन ईयर SIP इंक्रीज हुआ है। और टोटल SIP आपका क्रॉस हो गया 15 ट्रिलियन मार्क फ्रॉम 10 ट्रिलियन इन मतलब 5 ट्रिलियन जो है आपका लास्ट 17 मंथ में एडिशन हुआ है। अभी 15 ट्रिलियन SIP आपका टोटल AUM है SIP का। और लास्ट अभी का रिकॉर्ड अभी आया है कि ग्रोथ ओवर लास्ट 5 ईयर से कितना ग्रो है, मैं बताता हूँ। लास्ट 5 ईयर से 47% न्यू SIP रजिस्ट्रेशन हुए, 23% इन द टोटल काउंट ऑफ SIP बढ़ा है, 38% ग्रोथ इन SIP AUM है, और 8% जो मैंने अभी आपको बोला कि आपका मंथली फ्लो बढ़ा है। 27,000 करोड़ 7,000 करोड़ था पहले ये आपका जून 20 में, जो आपका बढ़ के 27,000 करोड़ रुपए पहुंच गया जून 25 में। तो आप कंटिन्यू देखोगे तो इनफ्लो कंटिन्यूस बढ़ रहा है आपका। मतलब ये कि अभी भी लोग बाग मतलब अवेयर है और लोग बाग इस चीज को समझने लग गए कि वाई SIP जरूरी है। ये लास्ट मेरा पैरा है, जस्ट वन स्टेप इज इनफ, मूव टूवर्ड सक्सेस एंड इट इज इजी टू बिलीव अदर बट बिलीव इन योरसेल्फ इज ए रियल चैलेंज। So my PPT is over, and if somebody have any query, then ask me the question. So we have received few questions. Okay. The first, so there are few questions we have. The first question is how to effectively create an SWP for seniors to make monthly amounts from their MF holdings. Many systems suggest that by the consultants, which one is the best for senior moderately conservatives? Can you repeat the question again? Sir, how to effectively create an SWP for seniors to get monthly amounts from their MF holdings, mutual fund holdings? Okay. Many systems suggest by the consultant which one is the best for seniors moderately conservative. सीनियर्स के लिए अगर आपका जैसे SWP आपको सिस्टमेटिक विड्रॉल करना है, तो सिस्टमेटिक विड्रॉल में आपका जो AUM आपका जो फंड क्रिएट हुआ है
उसमें अभी आपको मंथली जो आपका एक्सपेंडिचर है आप 9% एक लमसम ले सकते हो कि सपोज आपका एक मिनट कैलकुलेटर है, आपका सपोज अगर फंड में टोटल एक फंड इकट्ठा हो गया 1 करोड़ रुपीज, तो आपका 9% होता है इंटू 9%, So, 90,000, right? okay. 90,000 divided by 12. So you can withdraw 75,000 per month from your mutual funds portfolio, because 9% ये है कि आपका नॉर्मल खर्चा जो आपको 7% आपका एक जो चल रहा है, प्लस आपको 2% आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। मतलब मोस्ट ऑफ केस में ऐसा मानते हैं 9% इज सफिशिएंट टू विथड्रॉ द फंड फ्रॉम योर एक्यूमुलेशन। आपको एक एग्जांपल एक पीपीटी शेयर करना चाहूंगा। आई थिंक एक पीपीटी नहीं, सॉरी, एक एक्सेल शीट है, एक्सेल शीट शेयर करना चाहूंगा, एक मिनट। ये एक्सेल शीट विजिबल है? Yes, sir, visible है। मैं इसमें किसी फंड का कोई एड वेड नहीं कर रहा हूँ, केवल एक आपको एचडब्ल्यूपी का एक बता रहा हूँ कि क्या बेनिफिट एचडब्ल्यूपी का हो सकता है आपको। और आपके लिए सीनियर सिटीजन है तो आपके लिए बेस्ट फंड जो एचडब्ल्यूपी का, आप जो फंड आपका क्रिएट हुआ है उसको आप लो रिस्क मतलब एक मीडियम बैलेंस एडवांटेज फंड में ट्रांसफर करो, देन आप वहां से सिस्टमेटिक विड्रॉल करो। कोई भी बैलेंस एडवांटेज फंड ले सकते हो किसी भी कंपनी का, आप एनालिसिस करके। देन एक एग्जांपल आपको समझा देता हूँ कैसे एचडब्ल्यूपी वर्कआउट करता है। सपोज ये एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड है। 1 Feb 2000 को आपके पास 1 लाख का एयूएम क्रिएट हुआ था, कोई फंड आपके पास पड़ा हुआ है सपोज, ठीक है। देन आपने नेक्स्ट मंथ से आपने 75,000, जो मैंने आपको बोला है कि 9% आप विड्रॉ कर सकते हो, 75,000 आपने एवरी मंथ विड्रॉ किया है आपके म्यूचुअल फंड से फ्रॉम 1 मार्च 2000 से। तो 31 मार्च 23 तक आपने टोटल 277 मंथली इंस्टॉलमेंट से पैसा 75,000 करते करते आपने पैसा विड्रॉल कर लिया 2,75 लाख का। सो आप अभी गेस कर सकते हो कि 2 करोड़ विड्रॉल करने के बाद भी आपके पास कितना फंड बचा होगा? मैडम आप लोग गेस कर सकते हो कोई भी? इसके टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल आपने विड्रॉल करने के बाद 75,000 एवरी मंथ विड्रॉल करने के बाद आपने 2 करोड़ विड्रॉल कर लिया 1 करोड़ से, इसके बाद भी आपके पास फंड बचा हुआ 31 मार्च 2023 को 15 करोड़ रुपीज का, ऐसा। Wow. तो ये हाँ, तो ये इट्स कॉल्ड एचडब्ल्यूपी। तो आई थिंक 9% इज सफिशिएंट टू इन्वेस्टमेंट्स। आपको अगर आपके एक्सपेंसेस के ऊपर है, अगर आपको लगता है कि आपका एक्सपेंसेस 50,000 से भी हो जाएगा तो आप 50,000 एवरी मंथ विड्रॉ कर सकते हो। अगर अपन सपोज 6 यहाँ पर अपन ने 9% पकड़ा है, यहाँ पर 7% भी ले लेते हैं, एवरी मंथ आपने 58,000 विड्रॉल किया और टोटल विड्रॉल आपका 161 करोड़ हुआ। उसके बाद आपके पास फंड पड़ा हुआ 20 करोड़ का। तो आप मिनिमम आप 6% से लेकर 9% तक कितना भी अमाउंट विड्रॉ के लिए रख सकते हो उसमें, ऐसा। फुल ईयर में मंथ से इसको आप डिवाइड बाय 12 कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। Uh, yes, sir. It is suggested 5 or 6 mutual funds will do for the savings, but we see many funds houses have problem in deriving incomes from their investments. How many funds can we hold to be on the safer side? Means if you want to hold, then 6 to 7 fund is sufficient. Then before investing you have to check many parameters, कि आपने कोई फंड बाय कर लिया तो आपको पैरामीटर्स अलग अलग, उसका फंड मैनेजर कौन है, उसका एक्सपेंसेस रेशियो क्या है, वो कितना अल्फा जनरेट कर रहा है आपके बेंचमार्क से। सपोज आपका बेंचमार्क चल रहा है निफ्टी का या सेंसेक्स का 12 या 15%, 12%। अगर आपका बेंचमार्क उसमें आपका अल्फा जनरेट हो रहा है 6%, मतलब यू गेटिंग 18%,
तो हर एक चीज का पैरामीटर आपको जाके स्कीम के अंदर जाके एनालिसिस करना पड़ेगा बिफोर इन्वेस्टमेंट, और उसमें आपको देखना पड़ेगा इसमें रिस्क कितना है, बीटा कितना है, देन उसका टर्नओवर कितना चेंज हो रहा है, टर्नओवर रेशियो क्या है। उसके बेस टर्नओवर रेशियो में क्या है कि आप ऐसा नहीं फंड मैनेजर रेगुलर इंटरवल में फंड चेंज कर रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फंड मैनेजर कौन है, वो सब आपको पैरामीटर चेंज करके आपको देखना पड़ेगा, और एक पूरा आरआरबी एनालिसिस करके आपको 6 7 5 6 फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। So the next question is, I am a salaried person having monthly salary of 1 lakh rupees. Which mutual fund should I go for? अभी विच म्यूचुअल फंड्स इसमें मतलब उन्होंने एज बताया नहीं है, एज्यूम कि उनका एज लगभग 30 40 होगा। तो अगर उनका सैलरी 1 लाख है तो मिनिमम 15% ऑफ सैलरी आपको इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। मीन्स 15,000 एवरी मंथ आपको एसआईपी करनी चाहिए। बिकॉज क्या है कि 50% तो आपके खर्चे, रेगुलर खर्चे, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, ये वो 60% आपके हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में निकल जाता है। तो यू शुड इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट 15% ऑफ योर सैलरी, देन यू इंक्रीज योर एसआईपी। जैसे जैसे आपका सैलरी का इंक्रीज होता जाएगा, आप आपका एसआईपी भी उस रेशियो में बढ़ाते जाओ एवरी ईयर। Sir, how often should I review my mutual fund portfolio? In a year, every year you analysis your mutual funds every year. If some fund is not getting the return, then you rebalance the fund and investment in another fund. Sir, how do I choose the right mutual fund or fund house? वो अगेन टिपिकल है, उसके लिए आपको आपके जो भी आपके एडवाइजर है उनसे आपको मिलना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए। और हर कोई इजी नहीं है कि आप कोई भी फंड मतलब बाय कर लो, या कैसे भी कोई भी बोले आपने फंड बाय कर लिया है। You meet with your advisor and they will suggest which fund is better. So, what is the difference between direct and regular mutual funds, and how can we review it? डायरेक्ट और रेगुलर फंड में केवल इतना ही डिफरेंस है। रेगुलर फंड में आपका जो फंड जो आप बाय करते हो, किसी एजेंट के थ्रू बाय करते हो, या कोई आपका जिसने एआरएन होल्डर जो बोलते हैं अभी जिसके पास एआरएन होल्डर है, लाइसेंस है, उससे आप बाय करते हो। तो उसमें क्या रहता है कि आपका एक्सपेंसेस रेशियो रहता है वो ज्यादा मतलब एक्सपेंसेस रेशियो आपको रेगुलर फंड में ज्यादा रहता है, अराउंड आई थिंक 50 से 1% तक एक्सपेंसेस रेशियो रहता है। तो आपको डायरेक्ट फंड में अगर आपको आपको मालूम है कि विच फंड यू वांट टू बाय, और आपको सब आपका आप रिसर्च करके कर सकते हो, तो आप डायरेक्ट भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में एनएवी ज्यादा रहता है और रेगुलर फंड में एनएवी कम रहता है। बट एक्सपेंसेस रेशियो आपको डायरेक्ट फंड में कम रहेगा और रेगुलर फंड में एक्सपेंसेस रेशियो ज्यादा रहेगा। Sir, how tax would be deducted on the withdrawal of any mutual fund? Not TDS is deducted. Okay. TDS is not deducted. Income tax is equity oriented fund. Income tax is 12.5%. If Okay. if fund is equity fund and you investment for long term, then tax is 12.5%. And if a fund is means you investment for less than 1 year, then tax is will be 20%. And for that fund, it will come under slab rate. Means Is it 12.5% for long term, 12.5% you will charge after 1.25 lakh deduction. मीन सपोज आपने कोई ईयर में 1,50,000 कुछ अर्न किया है, तो आपको 1.25 का डिडक्शन मिलेगा, देन 25,000 पे आपको 12.5% चार्ज होगा। okay? Sir, is it possible to pause or skip SIP? यस, डेफिनेटली वी कैन स्किप एंड पॉज। So next question is, what is your opinion about subscribing in mutual funds that invest in debt funds? Apart from being safe, will they give good returns? सॉरी, कैन यू रिपीट अगेन?
what is your opinion about subscribing in mutual funds that invest in debt funds? Apart from being safe, will they give good returns? Means if you want to generate good return, then you have to investment in equity fund because equity fund have high risk than high return. अगर आपको इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करना तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, और आपको अगर मॉडरेट रिटर्न चाहिए तो आपको बेफ बैलेंस एडवांटेज फंड है या डेफ फंड है उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. Sir, there is one about the calculation that the swap calculator, by using swap calculator you have done. Can you please repeat the calculation method? स्वैप कैलकुलेटर दिस, Yes, sir. Yes, sir. ये आपको इसका और डिटेल चाहिए ना. दिस इज द Yes, sir. कैलकुलेशन, दिस इज द कैलकुलेशन. Suppose I told ki you withdrawal your investment 1 crore rupees from first Feb, then from next month onwards withdrawing 9%, 75,000. Then this is the calculation. Every month you withdrawing, जो आप विड्रॉ कर रहे हो, आप अगर देखोगे तो आपका फर्स्ट मंथ 75,000 में 4,000 का लॉस हुआ है. देन अगर आप कंटिन्यू चेक करोगे तो आपको हर एक 75,000 में जो आपने विड्रॉ किया ना, 4,17,000, जो आपने इनिशियल 34 मतलब 3 साल में जो आपने 25,50,000 रुपए विड्रॉल किए, उसमें 4 लाख का लॉस लगा है. देन अगर आप उसको आगे कंटिन्यू बढ़ते जाओगे तो आप देखोगे कि ये आपका फंड कंटिन्यू आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया. देन द फंड रिमेनिंग बैलेंस इज 15 crore 28 lakh और एज ऑन मार्च 23. यहाँ से चेक कर सकते हो. और ये इसका एनएवी उस टाइम चल रहा था 8 रुपए से. एनएवी स्टार्ट हुआ था. आफ्टर 27 ईयर इज 321. Okay, sir. That was the last question, and so there is one more. If investment in mutual fund yearly instead of SIP, then can we continue same for 20 years, even less, even with less returns? No, I already told you have to rebalance and recheck your fund on every year. So अगर आपको रिटर्न कम दे रहा तो you have to switch out that fund and rebalance the fund. Yes, sir. So, sir, this was the last question we had, and I'm really thankful for the session. It was really enlightening. As it pertains to the general public, we had very basic questions, though, but yes, they are very useful, and your answers were really valuable. And thank you for the session, sir. Thank you very much for giving me such opportunity for this program. Thank you, sir. Okay, thank you. So I left the meeting now. Yes, sir. Okay. Tech support, you may please stop the recording. Sorry.